पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है फिर गाइस? व्हाट इज मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन थिंग इन मेनी फॉर्म. ओके, या तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हैज अ एबिलिटी टू टेक मल्टीपल टास्क, मल्टीपल फॉर्म्स. Okay, perform the multiple activities. The object having the ability to take a multiple forms, right? One thing in a many form. The ability to appear more than one time, one person with different behaviors is called polymorphism. Means like a one object. We are the one kind of object. Object is a real-time entity. If we are goes where, went where in hospital, then we are the patient. If we are traveling, then we are a passenger, guys. Right now, the one thing in a many form. So how many types of polymorphism? There are two types of polymorphism in our Java programs. So compile type polymorphism and runtime polymorphism. Yes, screen दिख रही है guys आप लोगों को? Two types of polymorphism in our Java programming. Compile time polymorphism and runtime polymorphism. So compile time polymorphism, you can say that again, static binding, and runtime polymorphism means dynamic binding. Okay, we can also say static means early binding. Okay, and dynamic means late binding. There are two types of polymorphism is our Java programming. How we can achieve that? These types of polymorphisms we can achieve by using the methods, constructors, operator. We can in the form we can achieve the polymorphism in our programming. So where we use the polymorphism concept actually, guys? So if we use the inheritance concept, if we are use the inheritance means there is a polymorphism. Okay, that object is bind with a multiple task, with the multiple behaviors, in that our logic, guys. The object having a multiple behaviors, like in parent class, suppose there is a how many functions were created over there? There is a 5 to 6 functions created in our parent class. Those functions are bind with a parent class object. Means how many behaviors of that object, guys? There is a 5 to 6 behaviors exposed by the object. Means having how many behaviors there? Over there is a 5 to 6 behaviors of a object. So in a first function, if we are calculating the result of a student, so second function is a walking, third function is a eating. Okay, like that there is a so many functions created in our class. So that all these functions is bind with the our object. Means object having a different, means object having a multiple behaviors, one thing in a many form. That object shows the multiple tasks, multiple activities in that logic. Okay, that is the one kind of a polymorphism. So if we use the concept of which inheritance, so over there is the think of a polymorphism. Already we are used that concept. So there is a multiple methods and only one object. Okay, that object shows the multiple behaviors of the different kinds of classes. So how we can achieve the polymorphism? Through the constructor, method, and operator. So two types of polymorphism: compile time and runtime. Which is the example of a compile time polymorphism, guys? How many types of polymorphism? Okay, now there are two types of polymorphism: compile time and runtime. Runtime means execution time. Runtime. Okay, there are two types of polymorphisms. The best example of a compile type polymorphisms are, guys, method overloading, method overloading. Then second type is a constructor overloading. One is a operator overloading.
And runtime polymorphism, method overriding. Okay, by using the method overloading, constructor overloading, and operator overloading, we can achieve the compile time polymorphism. Which kind of polymorphism we can achieve? Compile time polymorphism. And runtime polymorphism, how we can achieve the runtime polymorphism in our Java program size? By using the method overloading concept. We'll see the how method is overloaded, how method is overriding, okay, or return, and how to constructor overloading in our Java program series. We'll see each for every two types of polymorphism, compile time and runtime polymorphism. अब compile time polymorphism को क्या बोल सकते हैं guys? Can we say compile time means static polymorphism? Static polymorphism. Okay, then we can say also this early binding. Okay, static. Runtime को क्या बोल सकते हैं? Can we say? What to say, guys? Dynamic polymorphism. Dynamic polymorphism. Then late binding. Late binding. Okay. See. We can achieve the compile time by using the method overloading concept. Constructor overloading, operator overloading. How can achieve the runtime polymorphism? By overriding the method. Only one example regarding to the runtime polymorphism. How can I achieve the best examples of the compile time polymorphism? Method overloading, constructor overloading, operator overloading. अब means guys होता क्या है देखो polymorphism means many form. One thing है ना many form. The object has a ability to take many forms, right? अब यहाँ पे देखो compile time polymorphism means the polymorphism कब the object determines where when guys at a compile time. ऑब्जेक्ट के साथ जो सारे बिहेवियर्स ऑफ दैट फंक्शन कंस्ट्रक्टर एंड ऑपरेटर्स कब बाइंड हो रहा है ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम ओके आफ्टर द कंपाइल टाइम मींस ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम्स ओके वी कैन से तो उस टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है वो किस टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होगा गाइस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेथड्स आर बाइंडिंग विथ एन ऑब्जेक्ट at what time at compile time is called compile time polymorphism जो functions होती है ना functions वो कब बाइंड होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ when determined during the compilation time तो उसे बोलेंगे हम compile time polymorphism the task the behaviors of that function is bind together with the object during the compilation time तो compile time में क्या होता है bind हो जाता है behavior of a function with the object. So that is the compile time polymorphism. अब runtime polymorphism means during the execution time, during the runtime, the functions behavior bind with the object during the execution time. That is the compile time, sorry, runtime polymorphism. How can I achieve? By using a method overriding concept. अब यहाँ पे देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कब कब होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम दैट ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा हमारे क्लास का तो ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शंस कब बाइंड हो जाते हैं कंपाइलेशन टाइम तो उसे बोलते हैं हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अब यहाँ पे रन टाइम में क्या होता है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम कंपाइल होने के बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना एग्जीक्यूट होता है तो उसे क्या कहते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उस ऑब्जेक्ट के साथ वो कब बाइंड होती है मेथड्स एग्जीक्यूशन टाइम तो उसे कहते हैं हम वी कैन से दैट इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हैपन
इन अ सेम क्लास। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि विद इन अ सेम क्लास में होता है, लाइक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बिटवीन टू क्लास। जैसे कि वहां पे किस टाइप का नेचर होना चाहिए, इनहेरिटेंस, इज ए रिलेशनशिप इज नेसेसरी। Without the easy relationship, can we override the method? No, we can't override the methods. Okay, with the same class, एक ही क्लास में ना मेथड ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। इन अ सेम क्लास हम मेथड ओवरराइडिंग कर सकते हैं क्या गाइस? कैन वी ओवरराइड द मेथड इन अ सेम क्लास? हम सेम क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते मेथड। सो टेल मी गाइस, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ मेथड डिक्लेरेशन? मेथड क्रिएशन का सिंटैक्स क्या अपना? व्हाट इज द सिंटैक्स? एक्सेस मॉडिफायर, okay, access modifier, then return type, then method name, argument list and method body. Okay, that is the syntax of method creation in Java programming. How we can create the methods in our Java program? By using that syntax: access modifier, return type, method name and argument list. Access modifier is optional, return type is a mandatory, method name should be necessary, then argument is a optional thing. Okay, in method creation. See, how can achieve the compile time polymorphism in our Java programs? We create one more class. P2 test class is there. Okay, see, we have class. Okay. How we can achieve the compile time polymorphism? Which are the best examples of compile time polymorphisms? Constructor overloading, method overloading, and operator overloading. Let's see. Not constructor test. Why? Six. No issue. Right now, see. How to achieve the compile time polymorphism? By using the constructor overloading, method overloading, and operator overloading. Okay. See, operator overloading means, guys, how many operators in Java? There is a multiple operators in Java. So Java can support this operator overloading concept. Java doesn't support the operator overloading concept. Okay, right? But by defaultly, which operator is supported in Java, guys? Plus operator is supported to overload. Okay, only one operator is used in Java programming. Okay, so how we can use that in our applications? How can we overload the operators, guys? Plus operator is used to addition of two numbers. What are the roles of plus operator, guys? Plus is used to perform addition of two numbers, three numbers, four numbers. Okay, what is the role of a addition means plus operator? To performing the addition of two numbers, right? That is the specification of that plus operator. Now, how we can overload in our Java programs? Means हमारी polymorphism की definition क्या है? One thing in a many form, taking a ability to take more than one form. उनकी ability होनी है कि ऑब्जेक्ट की taking more than one form, एक से ज्यादा फॉर्म वो शो कर सके, एक से ज्यादा वो एक्टिविटीज कर सके, राइट? अब प्लस ऑपरेटर है, प्लस तो हम हमेशा पता है कि प्लस इज यूज्ड टू एडिंग ओवर टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर, दो नंबर की एडिशन करने के लिए हम हमेशा प्लस का यूज करते हैं. बट इन जावा प्रोग्रामिंग से हाउ यूज द प्लस ऑपरेटर फॉर ओवरलोडिंग, हाउ कैन ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर? अब
जावा तो सारे ऑपरेटर को ओवरलोडिंग के लिए सपोर्ट करता है क्या? जावा डजंट सपोर्ट फॉर ऑपरेटर्स, but only one operator is supported in Java, which is by default plus operator is supported. Now how? See, int a is equal to 10. Now if we are not assigning any value to a, then what will happen, guys? Is equal to b, and we are use that value in our application. Now we are performing some activities. We are performing implementing a logic with the a and b variable. So which kind of logic? A and b addition logic. Now see guys, there is a compilation error. What kind of error is? Why compile time error is raised there over there, guys? Because of initializations. Local variable must be initialized first before the use. हमें necessary होता है every time. अगर local variable हम use कर रहे हैं within our logic, तो उससे पहले उसे इनिशियलाइज करना नेसेसरी होता है, उसे वैल्यू असाइन करना नेसेसरी होती है. नाउ सी मल्टीपल मार्क एड्रेस प्लेस द लोकल वेरिएबल b may not have been initialized. हमने इसे इनिशियलाइज किया है? नहीं. फर्स्ट वी हैव टू नीड इनिशियलाइज द वैल्यू इज इक्वल टू 20, राइट? इज देयर एनी एरर? देयर इज नो एनी एरर. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस लाइन, गाइस? इस लाइन का आउटपुट मिलेगा हमें 30 इज द आउटपुट. एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के एडिशन करने का काम किसका है? प्लस ऑपरेटर का है, राइट? प्लस साइन करते हैं ना. देयर इज ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स a and b are variables, but now in addition of logic a and b is the operands, right? अब देखिए यहाँ पे तो yes हम सिस्टम नॉट आउट डॉट में println में है ना वो सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है इधर उधर. लोकल वेरिएबल की लोकल वेरिएबल wait guys, not getting. आवाज नहीं है आपकी, क्लियर नहीं आ रही है. मतलब आपको जो भी बोलना है कोई भी मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है? ए प्लस हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है उसका. नहीं आ रहा है इंग्लिश यार. कर सकते हैं क्या? हेलो यस प्रियंका, या प्रियंका, हेलो यस यस, हाँ बोलिए ना. हेलो हेलो आ रही है आवाज, बोलिए. Now see addition of two numbers. Okay, that is the one thing. With a plus operator, we can add over two numbers. हम किसके लिए यूज कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर का? फॉर एडिंग टू नंबर्स, राइट? एंड अब नेक्स्ट यूज क्या होता है उसका? अगर वी हैव अ स्ट्रिंग s is equal to Java, right? Now see, we have one more variable. Which type? String type variable. Now how can concatenate the string? By using the plus operator. As well we can concatenate the strings by using the concat methods. Okay, now by using the plus operator, how we can concatenate the two strings? Whenever we want to join a two string, हमें अगर दो string को join करना है guys, want to join a two strings, then how we can join that two strings? By using the plus operator. That is the hard coded. Okay, now second होता है कि एक predefined function है concat करते हैं. By using that function we can concatenate the two strings. We can join the two strings. Okay, we are passing their values and those strings are joined. But by using the plus operator, how we can join the two strings? Now that is the s1, that is a one string object. Now we create a second object of a string. s2 is the second object of a string. Now अब किसके साथ ज्वाइन करना है इसे? Join it with a selenium. Okay,
No. Print the output on the console. How to join it? S1 dot, sorry, S1 plus S2. Okay, what is the result of this line? That line gives the result as a Java Selenium. Okay, means both the strings is joined. Java Selenium, ये दोनों भी स्ट्रिंग क्या हो जाएंगे यहाँ पे गाइस? कॉन्बिनेशन मींस उनका ज्वाइन हो जाएगा, जावा एंड सेलेनियम, बिकॉज ऑफ प्लस ऑपरेटर। हमने यहाँ पे प्लस यूज किया है ना। अब देखो यहाँ पे कितने फॉर्म्स हो गए, कितने बिहेवियर्स हो गए प्लस ऑपरेटर के गाइस। पहला तो क्या हुआ, उसका एडिशन करने के लिए यूज कर रहे हैं हम, दो नंबर के एडिशन करने के लिए प्लस का यूज कर रहे हैं। देन अब क्या हो रहा है कि दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, वी हैव टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट S1 एंड S2, दो ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए जावा एंड सेलेनियम। अब इन्हें हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, एक स्ट्रिंग बनानी है। दो भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनानी है। वी हैव टू स्ट्रिंग जावा एंड सेलेनियम, दो स्ट्रिंग है हा? तो हमें इसे ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनानी है, उसे हम कॉन्केटेनेशन करते हैं। ओके, कॉन्केटेनेट करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन हमें कॉन्केटेनेट करना है तो प्लस ऑपरेटर यूज करना है। दो स्ट्रिंग को अगर ज्वाइन करना है हमें, तो उस टाइम हम किसका यूज करते हैं गाइस? देयर वी यूज द प्लस ऑपरेटर। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस लाइन? अब दिस लॉजिक का आउटपुट क्या करेगा गाइस? जावा सेलेनियम करके आउटपुट आएगा, रन एज जावा एप्लीकेशन, जावा सेलेनियम करके। तो हमने देखा है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं हम। पॉलीमॉर्फिज्म का फंडा क्या है? वन थिंग इन अ मेनी फॉर्म। जो कोई भी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो डिफरेंट फॉर्म में, ओके, वो डिफरेंट फॉर्म प्ले करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज प्ले करता है, राइट। तो यहाँ पे देखो प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। प्लस का काम क्या होता है? दो नंबर के एडिशन करने के लिए। अब जावा में दूसरा क्या रोल है उसका, प्लस ऑपरेटर का? दो स्ट्रिंग है ना, दो नाम है। स्ट्रिंग मींस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं। जैसे कि जावा है, जावा में कितने कैरेक्टर्स है? हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन जावा? 4 कैरेक्टर्स। तो अब इन सबको है ना, ये स्ट्रिंग को है ना, दो स्ट्रिंग को जावा एंड सेलेनियम दे टू स्ट्रिंग्स, इन्हें ज्वाइन करना है हमें, एक ही स्ट्रिंग बनानी है। तो हमने क्या किसका यूज किया गाइस? प्लस ऑपरेटर का यूज किया। S1 प्लस S2 कर दिया, S1 और S2 कर दिया, तो S1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसमें which is the value in S1, Java is the value, which is the value in a S2 variable guys, Selenium is a value। तो उन्हें हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। यहाँ देखो हमने बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर हमने उसे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे समझ में आया कि वन थिंग इन मेनी फॉर्म। प्लस ऑपरेटर का एक रोल था एडिशन करना, उसने उसका परफॉर्म कर दिया। दूसरा रोल है उसका कॉन्केटेनेट करना, कि दो स्ट्रिंग को जोड़ना, राइट। उसने दो स्ट्रिंग जोड़ दिया, जावा सेलेनियम को एक यूनिट बना दिया। अब देखो उसके बाद होता है कि आप स्ट्रिंग के साथ कोई भी स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे S1 S2 बना दिया, यहाँ पे अगर प्लस करके हम ए वेरिएबल कॉल कर देते हैं, यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा? जैसे कि एक पहली स्ट्रिंग की हमारी जावा आ जाएगा। देन उसके बाद किसे जोड़ना है हमें? S2 को जोड़ना है। तो यहाँ पे सेलेनियम है, सेलेनियम जुड़ गए। उसके बाद किसे ज्वाइन कर रहे हैं हम गाइस? किसके साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं? वेरिएबल ए। वेरिएबल ए की वैल्यू क्या है गाइस? 10 इज द वैल्यू। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा? 10 करके आ जाएगा, राइट। अब देखो टू स्ट्रिंग फिट, अब इसका आउटपुट रहेगा जावा सेलेनियम 10 एंड और जो भी एडिशन रहेगी सेकंड स्टेटमेंट का आउटपुट 30, जावा सेलेनियम 10, राइट। अब देखो इसके बाद हमें किसे कॉल करना है? अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा गाइस? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का आउटपुट क्या रहेगा? जावा सेलेनियम 10 20 करके आउटपुट आएगा। यहाँ पे दो नंबर्स के एडिशन होगी क्या गाइस? नहीं होगी, क्योंकि पहला जो एक्टिविटी है, पहले तो एक स्ट्रिंग है, उसके साथ दूसरी स्ट्रिंग ज्वाइन हो रही है। देन वो एक स्ट्रिंग बन गई ज्वाइन होने के बाद जावा सेलेनियम करके। उसके बाद प्लस ए बना रहे हैं हम, वो कॉल फर्स्ट प्लस ए करके कॉल हो रहा है, राइट। तो किसे ज्वाइन करना है आप?
ए की जो भी वैल्यू रहेंगी वो किसके साथ ज्वाइन करनी है, जावा सेलेनियम के साथ। तो वहां पे हमने ज्वाइन कर दिया, वहां पे बना हमारा जावा सेलेनियम। उसके बाद 10, उसके बाद प्लस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें से क्या हुआ, 20 भी ज्वाइन हो रहा है। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट लाइन, दिस लाइन इज, अब इसका आउटपुट रहेगा हमारा जावा सेलेनियम 1020 करके। अब नाउ सी द आउटपुट, यहाँ पे एडिशन नहीं होगी, ए प्लस बी का 30 रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो बताता हूँ। क्योंकि पहली जो स्ट्रीम थी हमारी S1 में जावा है, दूसरी S2 में क्या है हमारा सेलेनियम है। ओके राइट, S1 प्लस S2 कर दिया हमने, वो पूरी एक स्ट्रीम बन गई हमारी, राइट। अब पूरी की पूरी एक स्ट्रीम, इस स्ट्रीम मींस इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। किसका कलेक्शन है, कैरेक्टर का कलेक्शन। कैरेक्टर एंड नंबर, इनकी एडिशन हो सकती है क्या गाइस, कैरेक्टर और नंबर की, कैरेक्टर एंड नंबर की एडिशन नहीं हो सकती है। तो उसके साथ वो कॉन्फिनेट हो सकता है, स्ट्रिंग एंड नंबर हम कॉन्फिनेट कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं, उनकी एडिशन नहीं होती। तो यहाँ पे हमने ये एक स्ट्रिंग बन गया हमारे जावा सेलेनियम करके, उसके साथ किससे जोड़ दिया हमने, 10 वैल्यू को जोड़ दिया विद दैट। अब यहाँ से क्या हुआ, ये तो जुड़ गया उसके साथ। अभी पूरी क्या हुई, जावा सेलेनियम 10 एक स्ट्रिंग बन गई हमारी, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर हो रहा है। तो वो हमारा इंटीजर्स एंड कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो रहा है, वो एक स्ट्रिंग बन गई। देन हमने प्लस ऑपरेटर लगा के किसे कॉल कर दिया, किसे ज्वाइन करना है, बी को करना, बी की जो भी वैल्यू रहेगी वो इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये पूरी बनी हमारी एक स्ट्रिंग बन गई, राइट। अब देखो यहाँ पे तक सही है। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट बनाते हैं हम, यहाँ पे अगर हम a प्लस बी कर देते हैं, देन प्लस S1 प्लस S2 कर देगा। देखो यहाँ पे ना, यहाँ आउटपुट क्या रहेगा उसका, नाउ सी लुक हियर, यहाँ पे गाइस आउटपुट क्या रहेगा, एनीवन। तो सीधा सीधा यहाँ पे पहले तो 10 कॉल हो रहा है, उसके बाद प्लस 20 मींस 10 प्लस 20 दोनों भी बोथ आर दी नंबर्स, बोथ वेरिएबल्स हैविंग अ नंबर वैल्यू। 30 प्लस आ जाएगा। हाँ 30 हो जाएगा। देन अब वो 30 हो गया, उसके बाद हम S1 ज्वाइन करवा रहे हैं, S1 में स्ट्रिंग है अवेलेबल, ऑब्वियसली उसका एडिशन नहीं होगा, उसमें क्या जावा सेलेनियम आएगा। जावा सेलेनियम इस तरीके का आउटपुट आ जाए। अब यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस कर देते हैं, मानो यहाँ में ना फिर से किसका यूज कर लेते हैं, यहाँ पे अल्टरनेट करने से हो जाएगा। यहाँ पे ये लगा दिया फिर से, तो भी क्या होने वाला है, इनकी एडिशन होगी पहले तो, टू नंबर्स बोथ आर द नंबर्स, बट उसके बाद वो किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ जुड़ गए, तो एक स्ट्रिंग बन गई। देन हम ए वैल्यू 10 करवा रहे थे, यहाँ पे वो स्ट्रिंग करके जुड़ेंगे, कॉन्फिनेशन होगा उनका, उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा। ओके, अब B4 हो रहा है, दोनों नंबर्स थे यहाँ पे, बट आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे भी नंबर ही थे ना 10 प्लस 20, बट ये इसका पहले क्या हो गया था, ऑपरेशन परफॉर्म हो गया था, विच एक्टिविटीज, कॉम्बिनेशन की एक्टिविटीज हो गई थी, स्ट्रिंग पहले था। पहले स्ट्रिंग हो गई थी, राइट। उसके बाद 10 स्ट्रिंग से जुड़ गया था, उसके बाद हमने 20 ऐड किया, तो 20 मींस पहली स्ट्रिंग हो गई थी पूरी, उसके बाद 20 मींस उसका एडिशन नहीं हुआ। अब यहाँ पे सेम ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करें बाय यूजिंग द राउंड ब्रैकेट, अब क्या हो जाएगा, हमने जो जैसे कि हमारा वो क्या रूल है मैथमेटिक्स का, पहले तो इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या तो जो ब्रैकेट्स होते पहले सॉल्व करते, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देन माइनस एंड एडिशन, लाइक दैट रिगार्डिंग टू दैट फीचर। अब वो जो है उसे ध्यान में रख के यहाँ पे क्या होगा, पहले तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगा, यहाँ तक तो रिजल्ट आया जाएगा जावा सेलेनियम करके, यहाँ कॉन्फिनेट हो जाएंगे अपनी स्क्रीन है ना, यहाँ तक कॉन्फिनेट हो जाएगी जावा सेलेनियम करके। उसके बाद जो है ना प्लस लगा के हमने क्या लिखा है इन राउंड ब्रैकेट, उसमें लिखा है a प्लस बी कर दिया है, तो उसकी a प्लस बी की यहाँ पे एडिशन हो जाएंगी, 10 20 करके नहीं आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा 30 आएगा। और देखो यहाँ पे ना एक यूनिट पहला ये हो गया था, ये वाला यूनिट था पहले, उसके बाद 10 20 ना इनकी एडिशन होगी, एडिशन होने के बाद राउंड ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, या तो राउंड ब्रैकेट में होंगे। ओके 30, तो इसका कॉन्फिनेंट होगा, पहले सेलेनियम जावा सेलेनियम करके एक स्ट्रिंग होगा, उसके साथ 30 रिजल्ट ज्वाइन होता है, राइट।
see the output console. जावा सेलिनियम 30 करके है, राइट। यहाँ पे पहले एडिशन हो गए 30 जावा 10 सेलिनियम करके है। आपको नंबर्स हो गए एसोसिएटेड विद नंबर्स, अगर नंबर्स हो गए तो उनके एडिशन हो जाएंगे पहले, फिर वो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइन होने के बाद कॉन्टिन्यू। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर के डिफरेंट रोल्स क्या है, वन थिंग इन यूनिफॉर्म, दो नंबर की एडिशन करने के लिए यूज करते हैं हम, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए भी ऑपरेटर का सॉरी प्लस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। तो वन थिंग इन यूनिफॉर्म हमारा प्रूव हो रहा है ना, पॉलीमॉर्फिज्म उसकी डेफिनेशन की तरह वर्क कर रहा है प्लस ऑपरेटर। So now this is the best example of a compiled type polymorphism. How can I achieve the compiled type polymorphism in Java programming says by operator overloading, that is the one thing. By operator overloading हम operator overload करके compiled type polymorphism अचीव कर सकते हैं। अब देखो कि प्लस ऑपरेटर था, इसके साथ ये बना हमारा एक ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट नाउ कंसीडर वन थिंग दैट इज कंसीडरेशन। अब जो प्लस ऑपरेटर है ना, इसके साथ है ना ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम, उससे कंपाइल टाइम क्या हो रहा है कि बाइंड हो रही है। अब जो 10 वैल्यू है 20 वैल्यू बाइंड तो हो जा रही है कंपाइल टाइम, ओके। अब उसके बाद हमारा जावा ऑब्जेक्ट है, सेलिनियम ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग इज अ क्लास वन, फर्स्ट क्लास ना जावा प्रोग्रामिंग फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रिंग क्या होती है, क्लास है जावा की, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आता है। अगर S1 जावा बना दिया हमने, जावा वैल्यू बना दी स्ट्रिंग, तो एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसे कॉन्फिनेट करना है टू स्ट्रिंग, तो दो स्ट्रिंग जोड़ना है तो प्लस का यूज कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर का, वन थिंग इन यूनिफॉर्म, ओके। वी प्रूव दैट compile time polymorphism how can I do by using the plus operator। यहाँ तक क्लियर है। now next about the method overloading concept। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया। अब देखना है क्या, नाउ अब लोगों को ये भी पता होगा ना कि कोई वेरिएबल हमने यहाँ पे बना दिया है, कॉन्फिनेट करने के लिए यूज करते हैं int is equal to 20 10 वैल्यू है। नाउ so सिसो में हम यूज करते हैं, इसका देखो कि टू स्ट्रिंग, नाउ इट इज इन, हम यहाँ पे लिख रहे हैं मींस स्ट्रिंग, जितने डबल कोट लिख रहे हैं मींस क्या हो रहा है गाइस, दैट इज द स्ट्रिंग वेयर रिटर्न इन अ स्ट्रिंग। अब देखो दिस इज अ इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर कौन सा इंटीजर नंबर है, हमें उसे ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, उसका नाम कॉल कर दे रहे, ए नाम का वेरिएबल है, तो किस टाइप का इंटीजर नंबर है। यहाँ पे जो प्लस लगाया ना गाइस हमने, जो इसकी वैल्यू है वो किसके साथ कॉन्कनेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ जोड़ रहे हैं, इस वाले स्ट्रिंग के साथ जोड़ रहे हैं, ओके, बाय प्लस ऑपरेटर। तो सिसो में भी हम प्लस का यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट। अब सभी को लोगों को पता है ना मेथड सिग्नेचर क्या होता है, मेथड सिंटैक्स। तो मेथड सिंटैक्स क्या होता है गाइस हमारा, कैन वी ओवरलोड और मेन मेथड, वो वाला भी क्वेश्चन देखेंगे हम। पहले उससे पहले देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग, how we can overload the methods in our Java program। अब मेथड ओवरलोडिंग किस तरीके से होती है, अब मेथड ओवरलोडिंग क्यों करना है, एक बेसिक सा हम देख लेंगे उसके बारे में कि हाउ व्हाई वी आर ओवरलोडिंग द मेथड्स। अब जैसे कि मानो कि वन थिंग मेनी फॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म है। अब जैसे कि अब इजी मींस रीडेबल फॉर्मेट, हमारा कोड है ना किस फॉर्मेट में होना चाहिए, विच इज द स्टैंडर्ड readable format, easily we can read it, easily we can manage it, maintain it, okay। हम easily उसे maintain कर सकते हैं, easily read कर सकते हैं, उस फॉर्मेट में हमें कोड implement करना है। अब मानो कि हम एडिशन कर रहे हैं, एक एडिशन एक फंक्शन लिया है हमने, वेयर यूज वन एडिशन फंक्शन। जैसे हम देखें ना कि मोबाइल एक कम्युनिकेशन मीडिया है, ओके, एक कम्युनिकेशन वे, तो उसमें ना कम्युनिकेशन ही करना है हमें, तो हम थ्रू द व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कितने वे से हो रहा है, कम्युनिकेट ईच अदर, व्हाट्सएप से भी हो रहा है, टेक्स्ट मैसेज भी हो रहा है, उसके बाद कॉल पे भी हम कॉलिंग से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब वो एक
फंक्शन है, कम्युनिकेशन फंक्शन। तो कम्युनिकेशन फंक्शन हाउ मेनी वेज वी कैन परफॉर्म सेम टास्क, 3 वेज कर रहे हैं बाय यूजिंग व्हाट्सएप। जैसे कि नाउ कंसीडर गाइस देयर सम नाउ टेक अ वर्ड। Okay, we'll create a one class. मोबाइल इज यूज टू, इसके लिए यूज होता है मोबाइल का गाइस, इट इज अ मल्टीपल यूजेस ऑफ अ मोबाइल, राइट। नाउ यहाँ पे ना हमने एक वाइड कम्युनिकेशन करके एक मेथड बना दिया, कम्युनिकेशन, ओके। एंड वी आर पास फॉर देयर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हमने यहाँ पे ना स्ट्रिंग, ओके, हमने यहाँ पे पास कर दिया है। आर्गुमेंट क्या है गाइस हमारे कम्युनिकेशन फंक्शन का, व्हाट्सएप करते हैं। यहाँ पे ना हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। अब व्हाट्सएप किस तरीके से वर्क करता है, हाउ टू कम्युनिकेट ईच अदर। एक बंदा दूसरे बंदे से थ्रू द व्हाट्सएप कम्युनिकेशन करना चाहता है, राइट, वांट टू कम्युनिकेट थ्रू द व्हाट्सएप ऐप। तो उसका जो भी लॉजिक रहेगा ना, हाउ द व्हाट्सएप, हाउ इज द व्हाट्सएप इज वर्किंग, ओके, हाउ व्हाट्सएप इज वर्किंग नाउ। अब व्हाट्सएप किस तरीके से काम करता है, उसकी सारी इंटरनल फंक्शनिंग जो भी लॉजिक रहेगा यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे नाम क्या है हमारे फंक्शन का, कम्युनिकेशन करके, वे ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट्सएप, ओके। देन आगे हम सेम फंक्शन यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, ओके। कम्युनिकेशन कर दिया। यहाँ पे हमारा वे क्या है, आप यहाँ पे लिख देते हैं हम टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट विच इज द कम्युनिकेशन वे, टेक्स्ट मैसेज से कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिर से क्या कर देते हैं, एक नया फंक्शन ले लेते हैं, वाइड कम्युनिकेशन, सॉरी सेम फंक्शन में कम्युनिकेशन वे कॉलिंग। वे क्या है हमारा, ओके। हाउ मेनी टाइम्स कम्युनिकेशन फंक्शन यूज इन आवर मोबाइल क्लास गाइस। हमारे जो मोबाइल क्लास है ना, उसमें हमने कितने टाइम्स यूज किया उसे, 3 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे ना कम्युनिकेशन करके हमने यूज किया है व्हाट्सएप वे, यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया है इसको, हाउ थ्रू द टेक्स्ट मैसेज। यहाँ फिर से हमने कम्युनिकेशन फंक्शन का यूज किया है थ्रू द कॉलिंग। अब देखो यहाँ पे हो रहा है ना, हम इजीली मेंटेन कर पा रहे हैं, इजीली इसे रीड कर मतलब कर पा रहे हैं, इजीली हम रीड कर पा रहे हैं ना, रीडेबल फॉर्मेट में आ रहा है। तो हाउ, तो याद है ना, अगर हम यहाँ पे नाम दूसरा दे देते, फंक्शन है ना कम्युनिकेशन की जगह है ना, चलो यहाँ पे कम्युनिकेशन थ्रू द व्हाट्सएप लगा दिए, यहाँ पे अगर हम फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ना फंक्शन का नाम मानो कि कम्युनिकेशन ही करना है ना, थ्रू टेक्स्ट, राइट, थ्रू टेक्स्ट करके हैं। देखो यहाँ पे ना हम इजीली, मतलब हमें पता है कि यार हमारा प्रोग्राम हमने बना दिया है, एक मोबाइल क्लास बनाई है हमने, उस क्लास में ना हमें डिफरेंट वे से कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन करने का लॉजिक इंप्लीमेंट करना है विद डिफरेंट फंक्शंस। तो हमेशा क्या हो रहा है ना, हमने 3 फंक्शन बना दिए हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो पहले फंक्शन का नाम रख दिया है कम्युनिकेशन, दूसरे फंक्शन का नाम दिया है थ्रू थ्रू टेक्स्ट, तीसरे फंक्शन का रख दिया है हमने कम्युनिकेट विद कॉलिंग, ओके, कम्युनिकेशन विद कॉलिंग लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इजीली रीडेबल फॉर्मेट में आ रहा है क्या, देखो कि हमें पता है कि एक एक्टिविटी है वो डिफरेंट फॉर्म में हमें उसे इम्प्लीमेंट करनी है, कम्युनिकेशन एक्टिविटी विद डिफरेंट फॉर्म से करनी। तो हम क्या करेंगे, हिट करेंगे एक एक
फंक्शन को हम हिट कर देंगे। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बना देंगे ना क्लास का मोबाइल, यहाँ देखो मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया मोबाइल m1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल करके हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब देखो यहाँ पे अगर m1 दे देते हैं, हम हिट कर रहे हैं m1, सॉरी m1 डॉट, यहाँ पे ना अब हमें कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन राइट गाइस। तो कम्युनिकेशन, हाउ मेनी वेज वी आर कम्युनिकेटेड इन आवर मोबाइल क्लास? 3 वेज हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज एंड कॉलिंग। तो यहाँ पे ना हमें तीनों भी मेथड को कॉल करना होगा। ओके, कम्युनिकेट करना है तो या तो हम तीनों मेथड का भी नाम सेम रख देते हैं और डिफरेंट आर्गुमेंट पास कर देते हैं। डिफरेंट आर्गुमेंट पास करते तो इजीली रीडेबल फॉर्मेट में इजीली वी कैन अंडरस्टूड। हम उससे कैसे अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि जैसे कि कम्युनिकेशन को अब यहाँ पे हमने ना कॉल कर दिया है, कम्युनिकेशन को कॉल कर दिया है, बस यहाँ पे डिसाइड करना है विच वे, यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास कर देने हैं। only we are pass over there only arguments which way we have to communicate। यहाँ पे थ्रू व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप कर दो। ओके, डिसाइड कहाँ से होगा? ओनली वंस, एक ही फंक्शन को हमें कॉल करना कम्युनिकेशन, और उसमें आर्गुमेंट पास करना है। आर्गुमेंट अगर व्हाट्सएप करो दोगे तो ऑटोमेटिकली दिस फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूट, तो फर्स्ट वाला फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूट, वो तो व्हाट्सएप हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट मैसेज कर दो तो पास वैल्यू, टेक्स्ट मैसेज कर दो यहाँ पे अगर लगा दिया टेक्स्ट मैसेज, तो आपको मतलब जो प्रोग्राम है जेवीएम है एग्जीक्यूटर, तो उसे पता चल जाएगा कि यार इसको कम्युनिकेशन किस वे से होना करना है, टेक्स्ट मैसेज से करना है, डायरेक्टली किसमें कॉल कर देगा कम्युनिकेशन, किस फंक्शन को, टेक्स्ट मैसेज वाले आर्गुमेंट वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। राइट, यहाँ पे इजी दिस थिंग मींस सिंपल हो रही है गाइस यहाँ पे कि मल्टीपल फंक्शंस विद मल्टीपल नेम से बनाने से अच्छा है एक ही नाम रखो मेथड का, और जिससे अगर डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होना है, डिफरेंट बिहेवियर्स होना है हमें, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट पास करो। कम्युनिकेशन फंक्शन ही बनाओ, एक ही फंक्शन बनाओ, बार बार बनाओ एक ही फंक्शन विद डिफरेंट आर्गुमेंट। अगर व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप एज आर्गुमेंट रखो, टेक्स्ट मैसेज से करना है तो टेक्स्ट मैसेज एज आर्गुमेंट रखो, कॉलिंग से करना है तो कॉलिंग एज आर्गुमेंट रखना है हमें। राइट, हम एक ही फंक्शन मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे इन अ सेम क्लास विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स, तो उसे हमें इजीली हमें पता है कि हम एक क्लास बना दिए, उस क्लास में हमने कम्युनिकेशन के 3 वेज बना दिए, और एक उसमें अगर 3 नाम अलग अलग नाम अगर डिफरेंट नाम यूज करोगे ना, तो यहाँ पे ना ये वन डॉट उस तीनों ही फंक्शन को हमें यूज करना है हमेशा। बट यहाँ से अगर देखो विड्रॉ करके एक फंक्शन होती है, हमेशा एटीएम में जाते हैं हम, विड्रॉ करके फंक्शन होती है, वहां पे इस तरीके से लगता है विड्रॉ अगर करना है हमें, वो कुछ मैसेज शो करता है कि वहां पे एक आर्गुमेंट लिखा हुआ है, विड्रॉ करना है, कैलकुलेशन होगा, इंटरनल जो भी मैकेनिज्म होगा वर्क करेगा, हमें मनी विड्रॉ कर देगा। राइट, विड्रॉ का जो भी टास्क देगा, अब चाहे वहाँ पे 100 एंटर करो, 500 करो, 5000 करो या 5 लाख, कुछ भी करना है। तो विड्रॉ फंक्शन का काम क्या है? विड्रॉ करना मनी। अब इन द फॉर्म ऑफ सिंगल 100 मीन्स 100 ही रुपीज करना है, तो 100 भी आप वहाँ पे एंटर करोगे। ओके, आप आउट मीन्स इनपुट प्रोवाइड करोगे तो 100 आप रुपीज आपके विड्रॉ हो जाएंगे। राइट, अगर 1000 आप करोगे तो 1000 रुपीज आपके विड्रॉ हो जाएंगे। मीन्स इंटरनल मैकेनिज्म है ना, वहाँ पे ना जो विड्रॉल फंक्शन लिखा है विद डिफरेंट आर्गुमेंट लिखा होगा विद डिफरेंट, बट एक ही फंक्शन काम कर रहा है विड्रॉ। कोई भी बैंक जाओ, कोई भी बैंक में अगर हम जा रहे हैं पैसा निकालना है तो हम हमेशा विड्रॉल ही करते हैं, विड्रॉ करते हैं, या कोई बंदा कोई डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है वहाँ पे डिफरेंट रोल, चाहे वो करंट अकाउंट से हो या सेविंग अकाउंट से हो, ओके, जीरो बैलेंस अकाउंट से, कोई भी अकाउंट से हो, टाइप ऑफ अकाउंट वो तो डिफरेंट हो गया। राइट, विड्रॉ फंक्शन का रोल क्या है? मनी विड्रॉ करना।
अब वो टिक उसका हम जिस टाइप का हम आर्गुमेंट पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, उसे इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट देगा। ओके, अगर लेस देन बैलेंस है, अब हमारे अकाउंट में ना 10,000 नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं, 10,000 हमें रिमूव करना है, विड्रॉ करना है, तो हमने 10,000 ऐसा इनपुट दे दिया उस फंक्शन को। अब उसमें हमने विड्रॉ नाम का फंक्शन है, वहां से अगर इनसफिशिएंट बैलेंस होगा तो वहां पे एक दूसरा विड्रॉ नाम का फंक्शन में लॉजिक लिख के बनाया दिया होगा, मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट यूज करके रखे होंगे उन्होंने। तो वहां पे उस टाइम तुरंत क्या हो जाता है, इंस्टेंटली डिस्प्लेड ऑन डिस्प्ले वन मैसेज ऑन आवर स्क्रीन, दैट विंडो, उस विंडो पे ने आउटपुट मींस एक मैसेज जनरेट हो जाएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट। ओके, तो उन्होंने वहां पे विड्रॉ के लिए मींस बैलेंस चेक करो, ये करो, वो करो, सारे मींस वहां पे मल्टीपल फंक्शंस उन्होंने यूज किया है। 100 अगर रिमूव करना है हमें 100, तो पे 100 करके फंक्शन बना दिया था उन्होंने। 1000 अगर रिमूव करना है तो 1000 फंक्शन बना दिया था उन्होंने, नहीं बनाया। विड्रॉल फंक्शन बनाया तो डिफरेंट आर्गुमेंट्स, मेथड ओवरलोड किया हुआ था, सेम फंक्शन विद अ डिफरेंट टास्क। 100 रिमूव करो, 100 1000 करो या 10,000 करो, वन थिंग इन मेनी फॉर्म बना दिया उन्होंने। राइट, गेटिंग यू गाइस? आपको समझ में आ रहा है मेथड ओवरलोडिंग मींस हम क्यों यूज करते हैं, why we are using a method overloading concept in our Java programming। अब यहाँ से ना हम लोग इजीली रीड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में सबको पता चल जाएंगे। मोबाइल क्लास है, उसमें कम्युनिकेशन नाम के फंक्शंस है। अगर कम्युनिकेशन करना है तो डिफरेंट रोल्स परफॉर्म कर सकती हो, डिफरेंट वेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, डिपेंड करेंगे कि हम वैल्यू किस टाइप की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हमें कितना मीन्स डिफिकल्ट होता कि डिफरेंट नाम होते, कम्युनिकेशन हुआ, थ्रू टेक्स्ट मैसेज हुआ, उसके बाद कम्युनिकेशन विद कॉलिंग हुआ, मीन्स एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है बट इन ए डिफरेंट वे, एक डिफरेंट मैनर से हमें मतलब डिफरेंट वे से ना कम्युनिकेशन करना है, बट मोटो क्या है, कम्युनिकेशन करना। आप देखो कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, अब कोई ना पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, आपको नॉलेज टुगेदर मीन्स नॉलेज इकट्ठा करना है आप लोगों को। गाइस, तो आप लोग है ना यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, ट्रेनर से पढ़ सकते हो, पढ़ रहे हो, सेशन लिंक में जो भी रिकॉर्डिंग है वहां से पढ़ रहे हो। बस आपका मोटो क्या है, आप लोगों को बस पढ़ना है, चाहे वो वे कोई भी हो। आपको नॉलेज मीन्स आपको टेस्टिंग सीखनी है, वो कहाँ से भी आप सीखते हो। रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपको नॉलेज आना चाहिए, टेस्टिंग आनी चाहिए, दैट इज आवर मोटो। हमारा वो वही हमारा एक मोटो है कि हमें सीखना है बस। तो गूगल से सीखो, यूट्यूब से सीखो, ट्रेनर से सीखो या रिकॉर्डिंग से सीखो, तो इसे भी क्यों ना सीखो, बस सीखना हमारा मोटो है। राइट, मीन्स सीखना मीन्स वो एक मेथड हुई, वो ओवरलोड हो रही है, बार बार उसकी डिफरेंट आर्गुमेंट्स मीन्स उसकी वैल्यू मीन्स एक्टिविटीज विद डिफरेंट टास्क हो रही है। राइट, तो इसके लिए हम मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट जावा में यूज करते हैं। तो जिसका एग्जांपल आता है गाइस, वो कंपाइल्ड एंड पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होता है। मेथड ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ अ कंपाइल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल्ड एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, कंपाइल्ड एंड पॉलीमॉर्फिज्म को हम मींस कितने वेज है गाइस, वी कैन से, जैसे कि स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग और कंपाइल्ड एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरीके से हम उसे बोल सकते हैं, कैन आइडेंटिफाई। चलो ठीक है, यहाँ आ गए प्रैक्टिकल में। हाउ कैन ओवरलोड द मेथड्स, उसके रूल्स है, देयर इज अ सर्टेन रूल्स टू ओवरलोड द मेथड्स इन आवर जावा प्रोग्राम्स। वेट अ 1 minute गाइस। ओके, मींस हाउ टू ओवरलोड द मेथड्स इन जावा प्रोग्राम्स। अब हमारे प्रोग्राम में हम मेथड ओवरलोड किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ कैन ओवरलोड द मेथड्स, उसके व्हाट आर द रूल्स। अब देखो कि व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ मेथड गाइस, इट इज नॉट वर्किंग। Okay, syntax, access modifier, hello everyone, आवाज आ रही है, method name, Yes, sir. okay, and argument list, right, and method body होता है हमारा मेथड का सिंटैक्स।
इसमें ना एक्सेस मॉडिफायर का ऑप्शनल होता है, आर्गुमेंट की उसको ऑप्शनल होती है। अब देखो कि the class in a same class with the same method name with the different arguments, more than one function with the same name and different arguments। अब जैसे कि देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं वाइट स्पीड टेस्ट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलो स्पीड टेस्ट ये बना हमारा एक फंक्शन। अब देखो कि यहाँ पे अगर सेम फंक्शन हम लिख रहे हैं अगेन वायर क्रिएटेड सेम फंक्शन बना दी, यहाँ पे ना मेथड डुप्लीकेट करके हमें एरर आएगी। वी आर गेटिंग अ डुप्लीकेट मेथड स्पीड टेस्ट टाइप टेस्ट क्लास में डुप्लीकेट मेथड हो रही है विद सेम नेम सेम आर्गुमेंट, सेम नेम सेम आर्गुमेंट। ओके यहाँ पे अगर हम आर्गुमेंट लिस्ट कुछ और आर्गुमेंट पास कर देते, चेंज कर देते हैं अगर आर्गुमेंट लिस्ट और देयर वे आर पासिंग द इंटीजर एज आर्गुमेंट। यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे दिया है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट है क्या गाइस? अभी नो देयर इज एनी आर्गुमेंट, आर्गुमेंट नहीं है, मींस ये बोथ आर सेम। अब डुप्लीकेट मेथड होगी क्या? डुप्लीकेट मेथड नहीं रहेगी क्योंकि नेम सेम, नेम सेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स। देखो यहाँ पे any entity which shows polymorphism during compile time is called static polymorphism। Operator overloading, constructor overloading and method overloading are best example of static polymorphism because they show polymorphism during compilation, right? Last line, in static polymorphism object use is determined during compilation itself, so it is called static binding। उसे क्या बोलेंगे हम? अर्ली बाइंडिंग, राइट। देन ओवरलोडिंग, थ्री टाइप्स की ओवरलोडिंग होती है। मेथड ओवरलोडिंग, नाउ सी द क्लास contains more than one method with same name, with same name and different argument, number of argument or same number of argument but different data types is called method overloading। उसे क्या कहेंगे गाइस? मेथड ओवरलोडिंग। एक क्लास है, उस क्लास में है ना मोर देन वन मेथड है विद द सेम नेम एंड डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट, different argument list or different argument list or same argument list with different data type। तो वो कंसेप्ट क्या हुआ? मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट। उसे क्या कहेंगे हम? मेथड ओवरलोडिंग। जैसे कि नाउ से the class test class having a more than one function with the same name, having a more than one function, how many functions? Two functions with the same name and different argument list, different type of argument, right? समझ में आया मेथड ओवरलोडिंग किसे कहते हैं गाइस? दिस इज द मेथड ओवरलोडिंग। द क्लास हैविंग a more than one function with a different with the same name and different argument, with different arguments, that is the method overloading। अब यहाँ पे हमने बना दिया कि सेम नेम, विद द सेम नेम से हमने बना स्पीड टेस्ट बना दिया। नेक्स्ट हमने बना दिया कि स्पीड टेस्ट डिफरेंट आर्गुमेंट्स, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग करके आर्गुमेंट पास करते हैं। ओके ये मेथड ओवरलोडिंग हुआ। यस मेथड, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया है कि यहाँ पे सिंपल सा बनाते हैं इंटीजर आर्गुमेंट, यहाँ पे बना देते हैं इसका आउटपुट, यहाँ बना देंगे स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ से ना हमें स्पीड टेस्ट करना है इस फंक्शन से,
यहाँ पे हमने स्पीड का लिमिट जो भी होगा लॉजिक हमने लिख दिया बिटवीन दिस क्लास दिस फंक्शन दैट फंक्शन। यहाँ पे हमने सेम फंक्शन नेम ले लिया विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स, डिफरेंट वैल्यू के लिए चेक करना है तो डिफरेंट सिनेरियो के लिए चेक करना है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप वाला लॉजिक लिख देंगे। ओके, तो इजीली रीड कर देंगे। हमें पता है कि टेस्ट क्लास वन का भी है, उस टेस्ट क्लास में हम स्पीड टेस्ट करने का लॉजिक लिख दिया है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो रूल्स कौन कौन से होते हैं, विच आर द रूल्स ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग में ना कंसीडर which things are not considered in method overloading guys। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर, किस टाइप का एक्सेस मॉडिफायर आप यूज कर रहे हो उसे कंसिडर नहीं करता है कंपाइलर इन मेथड ओवरलोडिंग। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न टाइप यूज्ड ओवर देयर, या फिर किस टाइप का रिटर्न टाइप यूज कर रहे हो गाइस आप, वो भी कंसिडर नहीं करता है। कौन? who doesn't consider, compile doesn't consider as a access modifier, what kind of access modifier and what kinds of return type used over there। only क्या consider करेगा compiler guys? Compiler only check the base things, compiler will check only function name and argument list। अब इस argument list, अब argument list में भी क्या चेक करता है? number of argument, then टाइप ऑफ आर्गुमेंट, देन थर्ड होता है कि सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। मानो कि आप हमने देखा कि यार डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट, यस, यहाँ पे कितने आर्गुमेंट्स है गाइस? हाउ मेनी आर्गुमेंट्स? 2 आर्गुमेंट्स। यहाँ पे भी अगर 2 आर्गुमेंट्स हो जाएंगे इट बी, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स ओवर देयर? यहाँ पे भी 2 आर्गुमेंट्स है, यहाँ पे भी 2 आर्गुमेंट्स है, बट कोई दिक्कत आ रही है? नहीं है। बट नाउ सी, यहाँ पे देखो नाउ सी कॉमा यहाँ पे ना कंपाइलर क्या चेक करेगा? नेम ऑफ फंक्शन, both the functions name should be same, yes, same in method overloading with different argument। अब यहाँ पे आर्गुमेंट में देखेगा कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, हाउ मेनी आर्गुमेंट? 2 आर्गुमेंट्स। यहाँ पे भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 आर्गुमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मींस किस टाइप के आर्गुमेंट्स है? इंटीजर एंड कैरेक्टर। यहाँ पे भी देखेगा इंटीजर कैरेक्टर। अरे नाम भी सेम है, आर्गुमेंट लिस्ट भी सेम है और टाइप भी सेम है उसका, तो ये भी डुप्लीकेट मेथड। यहाँ पे क्या होना चाहिए इसमें? सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट, सीक्वेंस किस सीक्वेंस से है? यहाँ पे इंटीजर कैरेक्टर तो भी वो डुप्लीकेट करिए। अगर यहाँ पे सीक्वेंस हम चेंज कर देते तो ये बनी हमारी मेथड ओवरलोडेड। ओके, नाउ इंट से ना तो कोई भी, तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज हुआ है, सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, तो सीक्वेंस में चेंज हो रहा है तो ये मेथड ओवरलोडिंग होगी। अगर सीक्वेंस, टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट सारा सेम रहेगा तो, और दिस 3 थिंग्स आर सेम इन आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट में ना अगर सेम रहेगी, मेथड नेम भी सेम रहेगा, तो उस टाइम मेथड डुप्लीकेट करके कंपाइल टाइम एरर आएगी। यस, we are getting a compilation error। So who check the method is overloaded or not? Compiler will check the method is overloaded or not। Which things is checked by the compiler? Method name and argument list। वो access modifier check करता है क्या? That is not checked by the compiler। वो return type check करता है क्या? That is not checked by the compiler। Compiler का role क्या होता है? Compiler will check only this thing, method name and argument of this type of argument। अब type of argument में क्या करेगा? Number of arguments, how many arguments over there, type of arguments and sequence of argument, ये तीनों की चीजें वो चेक करेगा। राइट, अभी मेथड ओवरलोडिंग हुई। यस, दिस मेथड इज ओवरलोडेड। नाउ सी, ओके, अब रूल्स कौन कौन से? वी कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम मेथड इन सेम क्लास, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। Through method overloading, we can perform different tasks through different forms of same method, which shows the polymorphism। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि through method overloading, we can perform different tasks through different forms of the same method। एक ही मेथड से हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। कंपाइल
Blur checks method signature for duplicate methods और for method overloading. मेथड डुप्लीकेट है या मेथड ओवरलोडिंग है, कौन चेक करता है? कंपाइलर. कंपाइलर क्या चेक करता है? मेथड सिग्नेचर. मेथड सिग्नेचर में क्या आता है? मेथड नेम एंड आर्गुमेंट्स. अब देखो यहाँ पे क्या चेक करेगा मेथड सिग्नेचर में? मेथड नेम चेक करेगा, देन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेक करेगा, देन types of argument, and one more point is there, sequence of a argument. Okay, if these three things are same for any two methods in a class, then compiler gives duplicate method error. Okay, correct. अब यहाँ पे देखो कि these three things are same. अब वो तीनों भी चीजें अगर सेम रहेंगे both methods की, मेथड नेम भी सेम रहेगा और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट भी सेम है, तो वो क्या होगा उसका? उस टाइम गिव्स अ डुप्लीकेट मेथड एरर करके आएगा. एक कंपाइलर गिव्स डुप्लीकेट मेथड एरर करके कंपाइलेशन एरर आएगी. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे ये? ओके, ओनली एग्जांपल दिया है, इंपॉर्टेंट नोट फॉर लोडिंग मेथड्स. ओके, जरूरत नहीं. How to overload methods in Java? What are the rules? Method name, the class having more than one function with the same name and different arguments, right? Who check the method is overloaded or not? Compiler will check the method overloaded or not, overloading or not. So which things is checked by the compiler in method overloading? Method signature. And which is the things are method signature? Method name and argument keys. In arguments, number of arguments, type of argument, and sequence of argument. These three things are checked by the compiler in a method argument. Okay, if the method signatures of both the functions are same, then which error is raised, guys? Duplicate method compile time error is used by the compiler. Okay, मेथड ओवरलोडिंग समझ में आया गाइस? यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग होती है बीटी में सेम क्लास होती है. केस क्लास में हम मोर देन वन फंक्शन बना रहे विद द सेम नेम एंड डिफरेंट आर्गुमेंट. यहाँ पे सेम फंक्शन और बना दिया हमने. यहाँ पे ना इंट या इंट स्पीड फेस करके बना दिया हमने. देखो यहाँ पे ना कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं. रिटर्न स्टेटमेंट नेसेसरी, रिटर्न इंटीजर है तो 0, कोई भी नंबर वैल्यू. अब देखो कितनी मेथड्स बनी है हमने टेस्ट क्लास में? 3 मेथड्स है विद द सेम नेम, मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम, स्पीड टेस्ट. अब यहाँ पे कंपाइलर है ना मेथड सिग्नेचर चेक करता है. उन मेथड सिग्नेचर में क्या होता है? मेथड नाम है आर्गुमेंट. वो एक्सेस मॉडिफायर चेक करता है क्या? अरे इसका तो पब्लिक है या तो डिफॉल्ट है या अभी भी डिफॉल्ट है, तो मेथड ओवरलोड नहीं होगी. वो कुछ भी नहीं चेक करता है. वो ओनली चेक द मेथड सिग्नेचर. अब मेथड सिग्नेचर में आता है कि मेथड नाम एंड आर्गुमेंट्स. ओके, डिफरेंट आर्गुमेंट्स. हुआ क्लियर गाइस? यस. अब हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हुआ, मेथड ओवरलोडिंग भी हुआ. अब होता है नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज फॉर यू गाइस योर असाइनमेंट. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी सेम होता है. The class having more than one constructor with the same name and different arguments. अब क्लास का कंस्ट्रक्टर बन रहा है मींस कंस्ट्रक्टर का नाम शुड बी सेम एज क्लास नेम. क्लास का नाम ही रहेगा. उसके बाद उसमें चेंजेस क्या रहेंगे? ओनली आर्गुमेंट्स चेंज रहेंगे. तो वो रहेगा हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो कंसेप्ट है उसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग से. एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से अगर कॉल करना है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होंगे हमारे क्लास में, बाय यूजिंग दिस फंक्शन उसे कॉल करते हैं. सो दैट इज द कंस्ट्रक्टर चेनिंग. ओके, क्लियर गाइस? मेथड ओवरलोडिंग मींस कंपाइल्ड पॉलीमॉर्फिज्म हमारा एंड हुआ. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बचा हुआ प्रैक्टिकल करके देख लेना. सेम एज इट इज होता है, वहाँ पे भी सेम नाम रहेगा विद डिफरेंट आर्गुमेंट. ओके,
उसके बाद आता है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हम मंडे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड करेंगे विद एग्जांपल।